हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बायोग्राफी. इट इज अ नॉन फिक्शनल राइटिंग. वी विल डिस्कस कलम का सिपाही, अ बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद विच इज रिटन बाय हिज सन अमृत राय. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अमृत राय है कौन. तो अमृत राय एक रिनाउंड हिंदी राइटर है, लेकिन ये ज़्यादातर अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं, प्रेमचंद जी के नाम से जाने जाते हैं. He was a Marxist thinker. He excelled as a novelist, short story writer, playwright, biographer and translator. He also won the Sahitya Academy Award in 1963 for Kalam Ka Sipahi, which we're going to discuss in this video. Then he received Soviet Land Nehru Award in 1971 and Nehru Fellowship in 1977-79. His research on the origins of Hindi and its split into Hindi and Urdu enriched his translations. Then some of his notable work include novels like Hathi Ke Daant, Jungle, Bhatiyali, then short stories like Kab Se Ka Din and Gili Mitti. Then next we talk about Munshi Premchand. मुंशी प्रेमचंद वॉज अ फेमस राइटर इन हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर. हम इनके स्टोरीज को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ही रोट स्टोरीज एंड नॉवेल अबाउट रियल लाइफ प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस. हिज वर्क एम टू ब्रिंग सोशल चेंजेस. तो इनका वर्क ज़्यादातर रियलिटी पर रहता था, मतलब जो सच्चाई थी सोसाइटी की उसको वो ज़्यादा रिवील करते थे. ही फर्स्ट रोट इन उर्दू अंडर द नेम नवाब राय. तो ये पहले उर्दू में लिखा करते थे, उनका जो नाम था वो नवाब राय था. फिर ये हिंदी में लिखना शुरू किए. सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल इंक्लूड गोदान, सेवा सदन एंड रंगभूमि. देन ही हैज़ ऑल्सो रिटन शॉर्ट स्टोरीज सच एज कफन, पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी. So these story beautifully show human emotions and social issues. Premchand was inspired by Mahatma Gandhi and Russian writer Tolstoy. He actually believed that literature should help to improve society. That's why many of his work is like an eye-opener. As this video is about biography, so first let us understand the meaning of biography and how it is different from autobiography. So a biography is the story of a person's life written by someone else. तो बायोग्राफी क्या है? किसी इंसान के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में लिखा जाता है, लेकिन कोई और लिखता है. और ऑटोबायोग्राफी में हम अपने बारे में खुद लिखते हैं. सो व्हाट बायोग्राफी एक्चुअली इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स education of that person, then achievements, struggles and any contribution if person has done for the society. A good biography is based on real fact, which uses letters, interviews and historical records to give an accurate picture of the person's life. Kalam Ka Sipahi is a good example of biography which is about Premchand and written by his own son Amrit Rai. It tells the story of Premchand's life, his journey as a writer and his impact on Hindi and Urdu literature. So why we should read biography? What is the use of biography? Actually, biographies help us to understand the lives of great personalities and learn from their experiences. They may inspire us by showing how people overcome difficulties and make a difference in the world. Now here comes the first question. Write a note on biographical writing in India. तो बायोग्राफिकल राइटिंग इंडिया में कैसी है, उसका क्या कंडीशन है, उसे हम इस आंसर में देखेंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. अ बायोग्राफी इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स. It covers their achievements, struggle and impact on society, offering insights into their thoughts and experience. While biography writing is well developed in the West, it remains unexplored in India. तो ये जो जॉनरा है वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है बायोग्राफी का, उतना डेवलप्ड इंडिया में नहीं है. इनफैक्ट जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए वैसा लिखा भी नहीं गया है. कुछ बायोग्राफी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसके बारे में लिखा गया उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर दिया है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया है. जो एक बैलेंस होना चाहिए वो उसमें नहीं मिल रहा है. तो कुछ बायोग्राफर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, इन सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किए, जैसे कि रामचंद्र गुहा और अमृत राय. तो एक अच्छा बायोग्राफी कैसा होता है? जो ट्रुथफुल हो, जिसमें फैक्ट्स हो, जो बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया हो, जो रीडर्स को इंगेज करके रखे. वो बायोग्राफी पढ़ने के बाद उस पर्सन के बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बने. तो ऐसा बायोग्राफी जो होता है वो अच्छा बायोग्राफी होता है, वही एक बैलेंस्ड बायोग्राफी होता है. सो इंडिया डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग बायोग्राफीज
लाइक वेस्टर्न कंट्रीज डू। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेडिशन है बायोग्राफी का, वैसे इंडिया में नहीं है। तो अमृत राय ने जो प्रेमचंद पर बायोग्राफी लिखा है उस पे इंट्रोडक्शन में इन्होंने अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा है कि प्रेमचंद जी पर बायोग्राफी बहुत ही पहले लिखा जाना चाहिए था, इनफैक्ट किसी और को लिखना चाहिए था। मतलब इतने अच्छे राइटर थे, इतने बड़े राइटर थे, लेकिन अभी तक किसी ने उन पर बायोग्राफी नहीं लिखा तो किसने? उनके बेटे ने लिखा। He believes his work should have been done earlier, preferably by someone else. According to him, Indians hesitate to write biographies due to various reasons. Either they don't understand the genre, या तो राइटर्स जो है वो जॉनरा को नहीं समझ पा रहे हैं, और दे डोंट सी इट एज अ क्रिएटिव, उनको क्रिएटिव नहीं लगता, या फिर उनको ये चैलेंज लेने में डर लगता है कि किसी के बारे में हम कैसे लिखें। मतलब कुछ भी अगर गड़बड़ लिखा, भले वो सच भी क्यों ना हो, लेकिन वो रीडर्स के सेंटीमेंट को अगर हर्ट कर दिया तो राइटर अगर जिंदा है तो उसकी खैर नहीं। तो हो सकता है इन चीजों से डर कर लोग बायोग्राफी नहीं लिखना चाहते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज बायोग्राफीज आर रिस्पेक्टेड एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग। Very well known writers, scientists, artists और leader has multiple biographies written about them. तो डेवलप्ड कंट्री में बायोग्राफीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लिखा जाता है। कई सारे राइटर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, लीडर्स, इनके बारे में बायोग्राफी लिखा गया है। तो अमृत राय ने भी कुछ राइटर्स के बारे में बताया, जैसे स्टीफन स्वाइग, एंड्री मोरोइसिस, अर्विंग स्टोन। तो ये सब जो हैं मतलब नॉवेलिस्ट तो हैं ही, लेकिन ये अपने नॉवेल के वजह से नहीं फेमस हुए हैं, अपने बायोग्राफी के वजह से फेमस हुए हैं। ये एज अ बायोग्राफर ज़्यादा फेमस हैं। In Europe, biographies are widely read, often even more than novels. However, in India, biographies are treated as unimportant, much like an outsider who is not allowed to enter a room. In short, बायोग्राफी जो है वो इंडिया में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग उसे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर रामचंद्र गुहा shares a similar views. He believes South Asians struggle with writing good biographies because they either glorify a person too much or completely reject them. तो इनका भी बायोग्राफी को लेकर सेम ही व्यू है कि साउथ एशिया में अच्छी बायोग्राफी नहीं लिखी जाती, या तो किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर देते हैं, या तो एकदम से ही उसे रिजेक्ट करते हैं, उसके बारे में बहुत ही गलत सब लिख देते हैं। तो उनका एक ऐसे है रामचंद्र गुहा का, वाई साउथ एशियंस डोंट राइट गुड बायोग्राफीज। सो इन दिस essay he explains that Indians either worship historical figures or completely ignore them. So what actually they should do, they should critically examine them, they should critically analyze them. In the same way, historian Rudrangshu Mukherjee also notes that while the 20th century saw many great biographies, Indian scholars remained mostly unaffected. मतलब 20th century में बहुत सारे biographies आई अलग अलग देश से, लेकिन जो इंडिया था, लेकिन इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा बायोग्राफी में इन्वॉल्व नहीं हुए। Indians often view people in extremes. तो एक साइकोलॉजी हो सकती है, मतलब जो इंडियंस होते हैं लोगों को बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से देखते हैं। मतलब किसी के अंदर अगर कोई खामियां दिख गई, कोई नेगेटिव चीज़ें दिख गई, तो उसको एकदम बुरी तरह से परेशान कर देंगे, उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलेंगे, या थोड़ा बहुत किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो वो भगवान हो जाता है। सो इंडियन व्यू पीपल एज अ परफेक्ट हीरोज और कम्प्लीटली विलन्स विदाउट रिकग्नाइजिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटीज। व्हेन अ बायोग्राफी हाईलाइट्स अ पर्सन फ्लॉज, पीपल रिएक्ट नेगेटिवली। तो जिस किसी की भी बायोग्राफी रहती है, अगर उसके बारे में कुछ उसकी कमियां बता देते हैं और वो इंसान अगर लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है, फेवरेट है, तो लोग बहुत ही नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं कि ये हमारा फेवरेट है, इसके अंदर कोई कमी हो ही नहीं सकती है, तो तुमने लिखा कैसे। अ गुड एग्जाम्पल इज द पॉलिस्टर प्रिंस, अ बुक अबाउट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी बाय हैमिस मैकडोनाल्ड। दो इट वॉज एन ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल, it was never sold in Indian bookstores due to legal threat from the Ambani family. Now let's see the conclusion. Writing a biography is a challenging task because it blends historical fact with literary storytelling. A good biographer should understand and respect their subject but also present a complete and honest picture without ignoring uncomfortable truth. This is why Amrit Rai's biography of Premchand is considered a masterpiece. It is both well researched and critically balanced. Now let's see the next question. Comment Premchand's effort to bridge the Hindi-Urdu divide. तो ये जो क्वेश्चन है वो बायोग्राफी पे बेस्ड है जो अमृत राय ने लिखा है। तो अगर आपको इस बायोग्राफी का समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. सो व्हाट दिस क्वेश्चन मीन्स, व्हाट दिस क्वेश्चन इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. The question asks you to analyze and discuss how Munshi Premchand contributed to bridging the linguistic and cultural gap between Hindi and Urdu. तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. Munshi Premchand was a famous writer in Hindi and Urdu literature. He wrote stories and novels about real life problems like poverty, caste discrimination and injustice. His works aimed to bring social change. He played a significant role in bridging the Hindi-Urdu divide through his literary choices, linguistic flexibility and deep engagement with both languages. तो इन्होंने equal importance दिया था हिंदी और उर्दू को. ये इनका एक तरीका था ताकि हिंदी और उर्दू का जो गैप था वो कम हो सके. His efforts can be seen in multiple aspects of his life and work. Now let's see the first point, early writing in Urdu. मतलब प्रेमचंद जी जो थे वो पहले अपना जो लिटरेरी करियर की शुरुआत किए थे वो उर्दू से किए थे. मतलब वो पहले उर्दू में लिखते थे अंडर द पेन नेम नवाब राय. तो एज अ राइटर उन्होंने अपना नाम रखा था नवाब राय. He was deeply influenced by classical Urdu literature and wrote extensively in the language before transitioning to Hindi. This bilingual foundation allowed him to understand the nuance of both linguistic traditions. So what is the meaning of nuance? Nuance means डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस. लेकिन ये जो डिफरेंस है वो अच्छा डिफरेंस, मतलब दोनों ही लैंग्वेज का एक पॉजिटिव साइड दिखाया. तो इससे क्या हुआ, प्रेमचंद जी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और उर्दू में भी. The next point is shift to Hindi. In chapter 12 of Amrit Rai's biography, we see a crucial shift in Premchand's career when he realizes the greater potential of Hindi through his association with Mahavir Prasad Podar. तो जो प्रेमचंद जी पर बायोग्राफी लिखी है अमृत राय जी ने, तो आपका जो इंग्लिश वर्जन है, मतलब हम इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं, तो इंग्लिश वर्जन के 12th चैप्टर में इसके बारे में लिखा है कि वो कैसे पहले उर्दू में लिखते थे, फिर उनका जो शिफ्ट हुआ वो हिंदी में हुआ. लेकिन जब वो हिंदी में लिखने लग गए, इसका मतलब ये नहीं था कि उर्दू में लिखना उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया. इनफैक्ट उनके जो ऑडियंस थे वो बढ़ गए. उर्दू के तो थे ही, अब हिंदी के भी हो गए. He saw Hindi as a language with a growing readership and essential medium for nationalist expression. तो क्योंकि ये एक नेशनलिस्ट भी थे, तो हिंदी को इन्होंने एक एज अ मीडियम चूज किया ताकि अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, उनके अंदर अवेयरनेस ला सके, सोशल चेंज ला सके. तो अब इन्होंने ये हिंदी और उर्दू का जो गैप था उसको डिवाइड होने से कैसे बचाया, इनफैक्ट वो एक ब्रिज कैसे बनाए. तो पहले तो ये उर्दू में लिखते ही थे, तो उर्दू का पूरा स्टाइल इनको पता ही था. तो ये सारी चीज़ें इन्होंने रोका नहीं, इन्होंने छोड़ा नहीं. इनफैक्ट हिंदी जब लिखने लगे तो उसमें उर्दू ट्रेडिशन, उर्दू कल्चर को भी वो मिक्स किए, जैसे कि उसके डिक्शन, थीम्स, नरेटिव टेक्निक्स, ये सब दोनों ही लैंग्वेज को मिक्स करके ये लिखना शुरू कर दिए थे. तो इससे जो लिंग्विस्टिक ब्रिज था वो बना, ना कि डिवाइड. सो प्रेमचंद्स राइटिंग स्टाइल इन हिंदी retained many Urdu influences, making his work accessible to both Hindi and Urdu readers. His diction, themes and narrative techniques were drawn from both traditions, creating a linguistic bridge rather than a divide. The next point is nationalist vision. तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि प्रेमचंद के अंदर एक नेशनलिस्ट विजन था. He viewed India as a unified nation and believed that language should not be divisive factor. मतलब ये इंडिया को एकदम यूनाइटेड देखते थे, जहाँ पे सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते थे. तो इन्होंने बस यही सोचा कि लैंग्वेज जो है कोई डिवाइसिव फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए इनके वर्क में लिंग्विस्टिक ब्लेंडिंग रहता ही था. एज हाईलाइटेड इन चैप्टर 25, his call for his countrymen for Swaraj was through Hans, a Hindi literary journal. However, his works remained inclusive, with Urdu-speaking readers also engaging with his themes of social justice and nationalism. तो इनके वर्क को सिर्फ हिंदी रीडर्स नहीं पढ़ते थे, बल्कि उर्दू रीडर्स भी पढ़ते थे, क्योंकि उनको हैबिट हो चुकी थी प्रेमचंद जी को पढ़ने की. देन नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी एंड सिंक्रेटिक कल्चर. सिंक्रेटिक मतलब कंबाइनिंग डिफरेंट आइडियाज, बिलीफ और प्रैक्टिसेस. सो प्रेमचंद वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी. तो जैसे गांधी जी ने एफर्ट लगाया था कि रिलीजियस गैप को फिल करे, कास्ट डिवाइड्स को ख़त्म करे, तो वैसे ही
प्रेमचंद जी भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को यूनिफाई करने में अपना एफर्ट लगा रहे थे। हिज पर्सनल इंटरेक्शन सच एज अलाउइंग हिज चिल्ड्रन टू मिक्स फ्रीली विद दोज ऑफ हिज मुस्लिम एम्प्लॉयज रिफ्लेक्ट हिज ब्रॉडर कमिटमेंट टू कल्चरल हार्मनी। ये सबके साथ घुल मिल के रहते थे, इवन अपने बच्चों को अलाउ करते थे कि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ वो रहे, उनके साथ बात करे, उनके साथ खेले। तो इससे उनका कल्चरल हार्मनी का जो कमिटमेंट है वो दिखाई देता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्बोलिज्म इन हिज वर्क्स। तो इन्होंने, प्रेमचंद जी ने सूरदास को एज अ कैरेक्टर लिया है, एक सिंबल है, सिंबल ऑफ यूनिटी, और इस कैरेक्टर के थ्रू प्रेमचंद जी ने स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को कन्वे किया है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी को कन्वे किया है। ये बताया कि इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनका लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी अलग है, उसके बाद भी वो यूनाइटेड है और इसी यूनिटी के वजह से ही वो फ्रीडम पा सकते हैं। सो इन रंगभूमि, एज नोटेड इन चैप्टर 19, प्रेमचंद्स प्रोटैगनिस्ट सूरदास embodies suffering, resilience and the spirit of nationalism. The character can be seen as a metaphor for India's linguistic and cultural diversity, which needed to be embraced rather than divided. His character suggests that embracing diversity, whether linguistic, cultural or social, was key to India's progress. Through Surdas, Premchand conveys that true nationalism lies in unity, perseverance and standing up for justice rather than in divisions based on language or identity. Now let's see the conclusion. Premchand's effort to bridge the Hindi-Urdu divide were not just linguistic but ideological. तो ये बहुत ही important statement है कि सिर्फ linguistic सोर्स को नहीं चूज किया इस गैप को कम करने के लिए, हिंदी और उर्दू का गैप को कम करने के लिए सिर्फ लिंग्विस्टिक अप्रोच को नहीं इन्होंने चूज किया, बल्कि आइडियोलॉजिकल। ही सॉ बोथ लैंग्वेजेस एज एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इंडियाज लिटरेरी एंड कल्चरल हेरिटेज एंड हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट अ हार्मोनियस फ्यूजन ऑफ बोथ ट्रेडिशंस। His legacy continues to inspire writers who seek to promote linguistic unity over division. तो एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि इन्होंने हिंदी और उर्दू के गैप को कैसे कम किया, ब्लेंडिंग से, लिंग्विस्टिक ब्लेंडिंग से। इन्होंने अपने वर्क में दोनों जगह के ट्रेडिशन को इंक्लूड किया, हिंदी को भी इंक्लूड किया और उर्दू को भी किया। इससे जो गैप था वो कम रहा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। There will be second part where we going to discuss about Premchand's vision on beauty and truth, and also will discuss about फीचर्स ऑफ अमृत राय's बायोग्राफी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।